अनुरोध करूंगा कि आप अपना आशीर्वचन दें। सर। जय श्री राम। આજે સૌરાષ્ટ્રની સંતો અને સૂરોની ધરતી ઉપર ઊભી થયેલી આપણી નાલંદા જેવી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ઉપસ્થિત આદરણીય મહામહિમ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી, મારી સાથે શિક્ષણમાં સાથે ને સાથે કામ કરતા અમારા મંત્રી ભાઈ શ્રી પ્રફુલભાઈ, વાઇસ ચાન્સેલર નીલાંબરીબેન, કાર્યકારી કુલ સચિવ રમેશભાઈ, બીઓબીના સભ્યશ્રીઓ, એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલના સભ્યશ્રીઓ, ભવનોના અધ્યક્ષશ્રીઓ, સંલગ્ન કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ, અધ્યાપકો, અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, પ્રતિષ્ઠિત મહેમાનો, પદવીધારકો, તેમના પરિવાર, પ્રેસ અને મીડિયાના ઉપસ્થિત સૌ મિત્રો, આજે મારા હાથમાં કાગળ આવ્યો અને જોયું કે 97 વિદ્યાર્થીનીઓ 141માંથી, ખરેખર ગુજરાતને ગૌરવ લેવા જેવો વિષય છે. હમણાં જ મહિલા દિવસ ગયો, આ મહિલા દિવસ નિમિત્તે આ બહેનોએ આજે નામ સાર્થક કર્યું છે. તમામ દીકરી અને દીકરાઓને, પહેલા દીકરીઓને અને પછી વિશ્વ આવતા સમયનું ગુજરાત, આવતા સમયનો દેશ ખૂબ મોટી ચેલેન્જીસો સાથે વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, અનેકવિધ નવા આયામો, બદલાતી જતી વિશ્વની પરિસ્થિતિની સાપેક્ષમાં કદાચ જો આપણે વાત કરીએ તો 21મી સદીની ગતિમાં 20મી સદી અને 21મી સદીમાં ખૂબ મોટો ફરક, 20મી સુધીના બધા સંશોધનો અને 21મી સદીની ઝડપ, જે પ્રમાણે અત્યારે દુનિયા લગભગ જે સ્પીડ ઉપરથી ચાલી રહ્યું છે, ખૂબ ઝડપથી આપણે સૌએ તાલમેલ મિલાવવો પડે, રોડ મેપ પણ નક્કી કરવો પડે. વેર વી આર, આપણે ક્યાં છીએ અને ક્યાં જવા માંગીએ છીએ. પણ સાથે સાથે હવે દેશ પણ દુનિયાની સાથે ચાલવા માટે આગલા વર્ષનું નહીં, આવતા 5 વર્ષનું નહીં, પરંતુ સદીના મધ્ય ભાગમાં જ્યારે પહોંચીએ એટલે 2047 સુધીમાં આખો દેશ મધ્ય ભાગમાં પહોંચે એ વખતે વિકસિત બનાવવાના સ્વપ્ન સાથે એક રોડ મેપ નક્કી થયો છે અને એ રોડ મેપ ઉપર ચાલવાનું કામ એ આવતી પેઢીને કરવાનું છે. કદાચ અમારામાંથી ઘણા બધા 2047 જોવા માટે હઈશું કે નહીં હઈએ, પરંતુ જે સ્વપ્ન અમે જોયું છે, જે સ્વપ્ન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જોયું છે, વિકસિત દેશોની શ્રેણીમાં ભારત વિકસિત દેશોની શ્રેણીમાં આર્થિક મહાસત્તા પણ બને. 5મા સુધી પહોંચ્યા, 3જા સુધી પહોંચવાના છીએ અને 47 સુધીમાં સમાજના તમામ વર્ગોને સાથે લઈ આગળ વધવાની નેમ સાથે જે રોડ મેપ બન્યો છે, એ રોડ મેપને ખેંચવાનું કામ આપ સૌએ કરવાનું છે. તૈયાર દિશા સૂચન આપણને મળે, પરંતુ એને મોટિવેટ કરવાનું, એને આગળ લઈ જવાનું કામ એ દેશનો યુવા જગત જ કરી શકે. અને એમાં પણ હવે જ્યારે બહેનો આટલું બધું ઇનિશિયેટ લઈ રહી છે, ખૂબ સારી રીતે ગંભીરતાપૂર્વક અભ્યાસ હોય, ક્યાંય પ્રોફેશનમાં હોય, ક્યાંય નાની મોટી નોકરી કરતી હોય, તો ત્યાં પોતાનું નામ દીકરીઓનો ઉજાળે એ પ્રમાણેનું કામ દીકરીઓ કરતી થઈ છે. એટલે સમાજની અંદર જે દીકરીઓ પાછળ હતી, હવે પુરુષના ખભે ખભો મિલાવી પુરુષની સાથે ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાનું, દુનિયાની અંદર સર્વપ્રથમ બનાવવા માટે આજે આગળ વધી રહી છે. યુનિવર્સિટીને પણ અભિનંદન. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી 100 કરોડ રૂપિયા મળી રહ્યા છે. ખૂબ મોટા વિકાસના પંથે આવતા સમયની અંદર સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી
નવા વિકાસના આયામો પણ સર કરશે, પરંતુ એમાં સહયોગ આપ સૌનો જોઈશે. પબ્લિક યુનિવર્સિટી એક્ટ દ્વારા યુનિવર્સિટીઓને ઓટોનોમસ દરજ્જો આપવાનું કામ સરકારે કર્યું છે, અને હવે યુનિવર્સિટીઓએ જાતે ગ્રો થવાનું નક્કી કરવું પડશે. પોતે પોતાના ગોલ પોતે શું એચીવ કરવા માગે છે, સમાજને શું આપવા માગે છે, એ અધ્યાપકો અને અધિકારીઓ સાથે મળી પોતાનો રોડમેપ પણ હુંસા તુસી વગર કેવળ ગોલ એટલો જ હોવો જોઈએ કે આ યુનિવર્સિટીમાં ભણતો પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીની એની ભવિષ્યની કારકિર્દી માટે આપણે શું કરી શકીએ એ પ્રકારનો રોડમેપ દર 5 વર્ષ સુધી, અને હવે તો નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીનો અમલ થઈ ચૂક્યો છે. દૂરંદેશીવાળી આ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી આવતા સમયની અંદર સંસ્કૃતિ સાથે વિકાસ, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને દુનિયામાં હવે નવી ચેલેન્જીસો, નવી ટેકનોલોજી, નવા વિજ્ઞાનના આયામો વિશ્વમાં વિસ્ફોટ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે ભારતે પણ નક્કી કર્યું છે હવે કેવળ બહારના દેશોમાં થતી શોધો આયાત કરીને નહીં, અહીંથી ઇનોવેશનને પણ જગ્યા મળવી જોઈએ. એઆઈ હોય, રોબોટિક્સ હોય, કોમ્પ્યુટિંગ સાયન્સ હોય કે કોઈ પણ ક્ષેત્ર, ઉભરતું ક્ષેત્ર દુનિયામાં ઇનોવેશન આપણા ત્યાં પણ થાય, આપણા યુવાનોને તક મળે એ પ્રકારના વાતાવરણનું નિર્માણ આપણા દેશમાં થયું છે. ગુજરાતે પણ એમાં અગ્રેસર ભૂમિકા ભજવી રહે છે. ત્યારે આ વિદ્યાર્થીઓને તક મળે, સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા નવા એન્ટરપ્રેન્યોર મળે, નવા ઉદ્યોગો મળે. માઇન્ડથી માર્કેટની જે સફર છે એ સફરમાં તમામ આ વિદ્યાર્થીઓને મનના અંદર પડેલા સંકલ્પો, મનની અંદર પડેલી નાની મોટી આઈડિયાને પુષ્ટિ આપવાનું કામ આપણે સૌએ કરવાનું. સમાજના ઉદ્યોગપતિઓ, સમાજ સેવીઓ, સમાજના આગેવાનો, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ સાથે વારંવાર સંવાદના કારણે એક દિશા અને બળ મળતું હોય છે. જ્યાં આગળ ચર્ચાને અવકાશ મટી જાય, જ્યાં આગળ સંવાદને અટકવું પડે, કદી વિકાસ થતો નથી. કોઈ પણ મુદ્દો હોય, કોઈ પણ વિષય હોય, સૌ સાથે મળીને જો એનું ચિંતન કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક નવી દિશાઓ અને નવા આયામો આપણને મળવાના છે. ત્યારે સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોના અને ખાસ કરી જે ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે અને ગોલ્ડ મેડલ નથી પ્રાપ્ત કરતા એવા પણ તમામ વિદ્યાર્થીઓને આવતા સમયની અંદર સાંસારિક જીવનમાં, ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ્યારે એમનો પ્રવેશ થાય, એટલે પ્રવેશ કેવળ રોજીરોટી માટે નહીં, ઘર ચલાવવા માટે પૂરતો નહીં, એ તો ચોક્કસ જોઈએ જ, અર્થોપાર્જનની જરૂરિયાત છે જ, પરંતુ અર્થોપાર્જનની સાથે સાથે પોતાનો પરિવાર, પોતાનો સમાજ, પોતાનું ગામ, એના માટેનો પણ વિચાર આ યુવાઓ કરશે તો આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વપ્ન છે. દરેક જણ પોતે પોતાનો તો વિચાર કરે જ, એમાં કોઈ ના નથી. અર્થોપાર્જન પણ કરે, એમાં કોઈ ના નથી. પણ સાથે સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક એવા કામો પણ આપણે કરીએ જેનાથી સમાજની અંદર કોઈ નવો વિચાર, નવો વિષય સાથે સમાજને આગળ લઈ જવા માટેની એક પરિબળ તમે બની રહો, એ રીતની એક સમાજ વ્યવસ્થાઓમાં તમારો ક્યાંક ને ક્યાંક સહયોગ રહે. નાના નાના કામો દ્વારા પણ, કોઈ બહુ મોટા કામ કરવાનું પણ જરૂર નથી. જીવનની અંદર ગમે તે એક એવું નક્કી કરીએ, પાણી બચાવવાનો ગોલ નક્કી કરીએ, વૃક્ષો વાવવાનો ગોલ નક્કી કરીએ, વીજળી બચાવવાનો ગોલ નક્કી કરીએ. ક્યાંક ને ક્યાંક એક નાના મોટા વિષય સાથે, અને આપણે જે પ્રોફેશનમાં હોઈએ એ પ્રોફેશનમાં, ચાહે ક્યાંક આપણે સર્વિસ કરતા હોઈએ, નોકરી કરતા હોઈએ, ક્યાંક નાનો મોટો કારોબાર ધંધો કરતા હોઈએ, વકીલ હોઈએ, પ્રોફેસર હોઈએ, ડૉક્ટર હોઈએ, આપણે આપણા ધંધાને ઈમાનદાર રહીશું અને આપણા પાસે આવતો પ્રત્યેક વ્યક્તિને ક્યાંય આપણે નક્કી કરેલી લક્ષ્મણ રેખાને અંડોળીને ડિસએડવાન્ટેજ નહીં લઈએ, એવો ગોલ પણ નક્કી કરીએ તો ભારત 2047 પહેલાં જે દિશામાં આગળ વધવા માગે છે, સર્વપ્રથમ બનવા માટે આગળ પગલાં ભરી રહ્યું છે. મને લાગે છે કે આવા નાના નાના સંકલ્પો
140 કરોડ લોકોના સંકલ્પો આવતા સમયની અંદર ભારતને વિશ્વગુરુ સમય પહેલાં બનાવી દેશે. અને એ રોડમેપ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જે નક્કી કર્યો છે કે 2047 સુધીમાં દેશને સર્વપ્રથમ બનાવો, મને વિશ્વાસ છે યુવા જગત જો ધારે, યુવા સંકલ્પ શક્તિ જો ધારે તો આ ગોલ 2047 પહેલાં પણ તમારા વિશ્વાસથી, તમારા બલબૂતા ઉપર આપણે હાંસલ કરી શકીએ એમ છીએ. ફરીથી એક વખત તમામ વિદ્યાર્થીઓને એમના ગૃહાશ્રમમાં ખૂબ ખૂબ મારી શુભેચ્છાઓ. એમના પરિવારજનોને કે જેમને ખૂબ મહેનતથી, ખૂબ આશાથી તમારામાં જે સંસ્કારોનું સિંચન કર્યું છે, અને તમારા ગુરુજનો કે જેમને જ્ઞાનનું સિંચન કર્યું છે, એ ખરેખર વટવૃક્ષ બની અને ઉગી રહે એવી મારી શુભેચ્છાઓ છે. ધન્યવાદ. धन्यवाद सर. आपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और हायर एजुकेशन सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस जो आ रहे हैं और उसके लिए जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ब्लूप्रिंट्स दिए जा रहे हैं, इसके बारे में बात किया. ट्रूली नॉलेज इज़ द न्यू कैपिटल आज के दिन में, और इस नॉलेज एज में हमें रियली ये विश्वास है कि हमारे विमेन स्कॉलर्स एज वेल एज मेन स्कॉलर्स एक एसेट साबित होंगे. थैंक यू सर. और अब हम बड़े उत्सुकता से सम्माननीय कुलाधिपति जी का अध्यक्षीय वक्तव्य सुनना चाहेंगे. फॉर योर ब्लेसिंग्स प्लीज सर. ओम. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हमारे प्रदेश के दोनों ही विद्वान शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल जी, उच्च शिक्षा मंत्री, एवं माननीय प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी, शिक्षा राज्य मंत्री, आदरणीय डॉक्टर नीलांबरी बेन दवे जी, कुलपति सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, और माननीय डॉक्टर रमेश परमार जी, कार्यकारी कुल सचिव, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एवं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभी सदस्यगण, महानुभाव, विभिन्न संकायों के अध्यक्ष महोदय, प्राध्यापक एवं प्राचार्यगण, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी कर्मचारीगण और दीक्षार्थी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मीडिया के मित्रों, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि सौराष्ट्र विश्वविद्यालय अपना 58वां दीक्षांत समारोह संपादित कर रहा है. लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं हमारी आवाज कम है और पीछे वालों की ज्यादा है. ध्यान करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इधर वाली लाइन में जो लोग बैठे हैं वो बहुत सभ्यता और शालीनता का परिचय दे रहे हैं, और ये जो पीछे बैठे हैं ये सबसे ज्यादा गड़बड़ में है. बेटे हेलो, इनको शांत कीजिए आप. ये जो बालक हैं पीछे बैठे हैं, इनको सभा में कैसे बैठना चाहिए इसकी जानकारी होनी चाहिए. आप एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के छात्र हैं. मैं अनुभव कर रहा हूं इतने महत्वपूर्ण विचार मेरे से पहले दोनों हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय ने दिए हैं. इधर वाले पीछे से आगे तक
बहुत शालीन युवा हैं और आप पीछे वाले शांत नहीं गड़बड़ में हैं। मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं, मेरी क्लास में गड़बड़ कतई नहीं चलेगी। आप बेटे ध्यान करो, महापुरुषों और शास्त्रों की बात से शुरू करता हूं। सभा में कैसे बैठना चाहिए उसके लिए लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। कि जो बेटा बेटी बालक बालिका युवाएं सभा में कैसे बैठते हैं ये जानकारी नहीं जिनको दी जाती, ऐसे युवाओं के माता पिता और गुरुजनों को अपमानित होना पड़ता है। माता पिता और गुरुजन शत्रु हैं उन बच्चों के, ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में लिखा है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो अपने बच्चों को इतना भी नहीं सिखाते कि भरी सभा के बीच में कैसे बैठना होता है, वो बालक बड़े होकर इस व्यवहार के कारण ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला, ये लिखा शास्त्र में। तो इसलिए आपने अपने माँ बाप का सम्मान बढ़ाना है, अपने गुरुजनों का सम्मान बढ़ाना है। और आप सारे मेरे ही सामने बैठे हो, उधर वाले तो उनके सामने थे, उन मंत्री जियों का बहुत सुना। तो आपने मेरा जो समय गड़बड़ किया 5-7 मिनट का, अब शांत होना है। आप बोलना नहीं, दूसरे की ओर देखना नहीं, इधर मंच की ओर देखिए। आपका विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक और पुराना विश्वविद्यालय है। इन विश्वविद्यालयों का काम केवल और केवल एक है कि अपने देश की भावी पीढ़ी को शिक्षित करना, व्यवहारिक ज्ञान देना, जीवन में जीने के तरीके प्राप्त करना। और इसीलिए ये जो दीक्षांत का कार्यक्रम होता है, ये जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। यहाँ पर गुरुजन लोग भी बैठे हैं, आपके अभिभावक भी आए बैठे हैं, और जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं, करनी हैं, ऐसे युवा बेटा और बेटी भी बैठे हैं। इस कार्यक्रम को क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्या थी? डिग्री बांट देते, घर में भेज देते तो भी उतना ही महत्व रखती थी। ये इसीलिए हम इकट्ठे होते हैं कि एक पढ़े लिखे युवा बेटा बेटी से क्या अपेक्षा है, समाज उनसे क्या इच्छाएं रखता है, और गुरुजन अपने बालकों को अंतिम क्या उपदेश देते थे ताकि वो समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इसके लिए आज बहुत धैर्य के साथ, बड़ी गरिमा के साथ, बड़ी शालीनता के साथ इस आयोजन को किया जाता था। आप जितने युवा बेटा बेटी बैठे हैं, जिनको डिग्री मिल रही हैं, उनके भी काम की बात हमारे आपके बीच में है। और जो बाकी लोग बैठाए गए उनको भी सुननी चाहिए ये बातें। आप पढ़ लिख रहे हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति में और पढ़े लिखे में कोई अंतर ही नहीं है, तो इन डिग्रियों का क्या फायदा है? ये डिग्रियां एक व्यक्ति को प्रमाणित करती हैं कि ये शिक्षित हो चुका है, ये अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाया गया है, ये परिवार के कुल के गौरव को भी बढ़ाने वाला होगा और समाज और देश को भी आगे बढ़ाने वाला होगा। यही तो शिक्षा के मूल उद्देश्य थे। और आज के दिन यही उपदेश
गुरुजन अपने इन विद्यार्थियों को देते थे जिनको आज डिग्रियां देनी है। मैं सर्वप्रथम उन सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, अच्छे अंक लेकर के डिग्रियां प्राप्त की हैं, उन सब को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। आपके आदरणीय गुरुजनों को, जिन्होंने बहुत तपस्या और परिश्रम के साथ आपको शिक्षित किया है और आज दीक्षित भी कर रहे हैं, ऐसे गुरुजनों को भी मैं नमन करता हूं। और आपके कुछ अभिभावक भी हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने बहुत परिश्रम किया आप सब बेटे बेटियों के लिए। माता पिता से बड़ा हितकारी आप सब के लिए कोई नहीं है। माता पिता वो हैं जो स्वयं भूखे रहे, आपको भूखा नहीं रहने दिया। स्वयं अच्छे कपड़े नहीं पहने, आपको अच्छे कपड़े पहनाकर बाहर भेजा। स्वयं इतने नहीं पढ़ पाए जितना आपको पढ़ाया। स्वयं अपने जीवन को हर मोर्चे पर बच्चों की उन्नति के सामने माँ बाप घुटने टेक देते हैं। और सब माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी मेरे से भी महान बने। उनके प्रति क्या कर्तव्य है, यही तो आज बताने के लिए आप इकट्ठे किए हो। अब मैं वो उपदेश जो प्राचीन भारत में एक पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त करने वाले बेटे बेटी को दिया जाता था, वो ऋषियों का उपदेश, वो उपनिषदों का उपदेश आपको सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। आज पहला उपदेश गुरु अपने पढ़े लिखे बेटा बेटी को क्या देता था, आप बेटे ध्यान से सुनेंगे। पहला उपदेश है सत्यम वद, दूसरा धर्मम चर, तीसरा स्वाध्यान मा प्रमद, चौथा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अगला है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, एषः आदेशः एषः उपदेशः, यन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। ये वो उपदेश था जो भारत की धरा पर आदि काल से गुरुकुलों में जो बेटा बेटी पढ़ते थे, इस देश के ऋषि तुल्य गुरुजन उनको जीवन का ये उपदेश देकर समाज में कार्य क्षेत्र में भेजा करते थे। एक पढ़े लिखे आदमी से क्या अपेक्षा है और कितना बड़ा खजाना आपको दिया है। विद्या के बारे में ध्यान से सुनेंगे आप। इन गुरुजनों ने आपको जो संपदा दे करके विभूषित किया है, वो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, उससे बड़ा धन दुनिया में कुछ नहीं जो आपको मिला है। वहां लिखा हुआ है न चौरहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते व नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। प्यारे बेटे और बेटियों, आपके गुरुजन जो धन आपको बांट रहे विद्या का, इससे बड़ा धन कोई नहीं। क्यों नहीं, ध्यान करो। घर में चोर घुस जाए ना, जो धनमाल इकट्ठा माता पिता दादा दादी ने किया उसको चुरा के ले जाएंगे, लेकिन आपके विद्या के धन को चोर नहीं चुरा सकता। और कोई राजा आपकी प्रॉपर्टी को छीन सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी छीन सकता है, लेकिन जो विद्या इन गुरुजनों ने दी है वो विद्या राजा भी आपसे नहीं छीन सकता है। न राज्यहार्यम और न भ्रातृभाज्यम। एक घर में 3-4 भाई होते हैं, जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो माता पिता रिश्तेदार इकट्ठे होकर उनको बराबर का हिस्सा बांट देते हैं।
लेकिन आपने जो विद्या पढ़ी है, जिस डिग्रियों को प्राप्त किया है, आपकी इस विद्या को नहीं बांटा जा सकता, वो आपकी ही रहेगी, उसे कोई नहीं आपसे ले सकता। न भ्रातृभाजम न च भारकारी। मजे की बात, ये गुजरात प्रदेश धनी लोगों का प्रदेश है। सूरत में हीरे का काम होता है, हीरा बड़ा कीमती होता है। 10 किलो हीरा सिर पर लाद दें तो वजन लगेगा कि नहीं? कीमती भले ही, लेकिन बोझ देने वाला है। लेकिन विद्या जितनी पढ़ोगे, कितनी भी पढ़ो, लेकिन ये कभी भारकारी भार नहीं देती है, ये बिल्कुल वजन नहीं देगी आपको। और मजे की बात अंतिम, दुनिया में आपके पास जितना धन है, कितना भी धन है, अंबानी से भी ज्यादा धन है, लेकिन वो यदि अपने धन को, मान लो 1 मिनट के लिए आप पर 100 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ आपने किसी को दे दिया, तो 99 करोड़ बचता, 100 करोड़ घट गया। और जितना बांटोगे उतना ही घटता जाएगा। जितना धन को बांटोगे उतना आपका कम होता जाएगा। लेकिन इन गुरुजनों ने जो विद्या आपको दी है ना, इसको जितना बांटोगे उतनी आपकी बढ़ती चली जाएगी, ये उतनी बढ़ेगी। इसलिए कहा विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। इस दुनिया में विद्या से बड़ा धन कोई नहीं, इसलिए कहा विद्या दानम महादानम ब्रह्मदानम विशिष्यते। विद्या से बड़ा दान कोई दूसरा नहीं है। एक विद्या पढ़ा हुआ युवा युवती, उसमें जो प्रतिभा विकसित होती है, उसमें गुणों का संचारण होता है, वो दुनिया समाज परिवारों की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनता है। इसलिए मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, आज के दिन जो विद्या आपको बांटी गई गुरुजनों ने, उस पढ़े हुए बालक बालिका से आज के दिन अंतिम उपदेश गुरु देता था और कहता था, तुम जहां भी रहो वहीं जीवन में सत्य का आचरण करना। झूठ की जिंदगी, बनावटी जिंदगी, दोगली जिंदगी सुखी करने वाली नहीं होती। जो लोग सत्य बोलते हैं वो सदैव निडर होते हैं, उनका दुनिया सम्मान करती है। सच्चाई बोलने वालों पर दुनिया विश्वास करती है। इसलिए पहला उपदेश था सत्य का आचरण करना, और दूसरा उपदेश था धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। धर्म का मतलब ये धर्म नहीं था जिनकी आज हम चर्चा करते हैं, हिंदू मुसलमान जैन यहूदी पारसी ईसाई मुसलमान, इनकी बात उस काल में धर्म ये नहीं मानता था। धर्म का मतलब होता था ऐसे गुणों को धारण करना जो मेरा भी कल्याण करे, दुनिया का भी कल्याण करे। ऐसे श्रेष्ठ गुण और जिम्मेदारी, एक ऐसा नागरिक, उसी को धार्मिक बोलते थे कि जिसने जो पढ़ा है वैसा ही जीवन जिएगा, वैसा ही समाज बनाएगा। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। ये था भारतीय जीवन मूल्य। जो मन में है वही वाणी में हो, जो वाणी में है वही कर्म में हो। 2 तरह की जिंदगी आज जो लोग जी रहे हैं, ये अपने आप को भी धोखा दे रही, लोगों को भी धोखा देती है। आज हम 2 तरह की जिंदगी जीते हैं। समझदार पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि कोई प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करे, आपने दखल देने का क्या मतलब है? पब्लिक लाइफ अच्छी होनी चाहिए। प्राइवेट लाइफ में कोई कुछ भी करे, आप क्यों दखल देते हैं? लेकिन भारत के लोगों का चिंतन क्या था? जिस व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ अलग है, पब्लिक लाइफ अलग है, वो पूर्ण इंसान हो नहीं सकता। जिसकी प्राइवेट लाइफ गंदगी का नमूना है,
उसकी पब्लिक लाइफ अच्छी कैसे हो सकती है? मैं यहां भाषण झाड़ूं आपके बीच में कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बुद्धि बाहर चली जाती है। यहां तो मैं भाषण दूं शराब नहीं पीना चाहिए और घर जाते हैं बोतल खोल लूं, तो इस भाषण का क्या लाभ है बताइए? ये जिंदगी डबल जिंदगी है। भारत का जीवन एक खुली किताब होता था, उसका जीवन लोगों को प्रेरणा देने वाला होता था। आज के दिन गुरु यही उपदेश देता था, बेटे दो तरह की जिंदगी नहीं जीनी, जो दिखते हो वैसा ही व्यवहार जीवन में हो, ऐसा धर्मपूर्ण आचरण इसी को बोलते थे। और आप जिम्मेदार बनना, जो पढ़ा है उसको समाज के लोगों में उसका लाभ होना चाहिए। और तीसरी बात कहते थे, बेटे पढ़ाई लिखाई को बीच में मत छोड़ देना, आजीवन विद्यार्थी बने रहना, जो पढ़ाया उसको बढ़ाते रहना और अपने लिए मत रखना उसको, दुनिया की भलाई के लिए बांटना, सबका कल्याण करना। आपकी शिक्षा से आपके परिवार का भला होना चाहिए, आपकी पढ़ाई से समाज और देश का भला होना चाहिए, प्राणी मात्र और मानवता का भला होना चाहिए। इसको लोक कल्याण में बांटना, जो विद्या तुमने पढ़ी है। और इसके साथ साथ गुरु कहता था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बेटे पढ़ लिख करके तुम पैसे वाले हो जाओगे, बड़े बड़े भवन कोठियां बना लोगे, आप पे तिजोरियां भी धन की होंगी, लेकिन जब तुम ऐसे वैभव में जियो तो माता पिता को मत भुला देना, अपने गुरुजनों को अनादर मत करना। वो देवता है, उन देवताओं का सम्मान होना चाहिए। तुम आज जो कुछ बने हो उन्हीं की कृपा से बने हो, स्वार्थी मत बनना, परमार्थी बनना, ये उपदेश गुरु देता था। प्यारे बेटे और बेटियों, आपने लंबे समय जो यहाँ तपस्या की, डिग्रियां प्राप्त की, हजारों हजार विद्यार्थी, कुछ ऑनलाइन भी हमें सुन रहे होंगे, आप भी यहाँ पर बैठे हैं। लंबी चर्चा न करते हुए आपसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप अपने जीवन में इन डिग्रियों की सार्थकता को सिद्ध करें। आदमी के जीवन में हटकर के पहल करनी चाहिए। अभी माननीय ऋषिकेश भाई पटेल जी और प्रफुल्ल भाई पांचेरिया जी ने जो छोटे छोटे बिंदु आपको दिए, छोटी छोटी घटनाएं आदमी को महान बना देती हैं, छोटे छोटे लक्ष्य उदार बना देते हैं। आपके प्रदेश के और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज जिस बुलंदियों पर हैं, विश्व के महान नेता बन पाए हैं, उनके पीछे छोटी छोटी घटनाएं ही रही हैं। आप उनकी जीवनी को कभी पढ़ना। एक दिन में एक घटना पढ़ रहा था, आपको काम आएगी। जब वो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे, वडनगर, आप कभी जाइए उनके गांव में, अभी पिछले दिनों में जाके आया हूं। वहां जब वो पढ़ते थे, पिता उनके गांव वडनगर में एक मेला लगता था शिवरात्रि का, जो अभी परसों गई है, शिवरात्रि का मेला। उनके पिता ने अपने बेटे नरेंद्र को 1 रुपया दिया कि बेटे मेले में जाओगे, कुछ खा पी लेना। कितना खुश होता बालक। लेकिन नरेंद्र के गुण देखिए आप। नरेंद्र को जो पैसा पिता ने दिया 1 रुपया, उसने मेले में उसको खर्च नहीं किया, अपितु अपने क्लासमेट साथियों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा, तुम्हारे माता पिता ने मेले के लिए क्या क्या दिया? उनको भी माता पिता ने, किसी को 1 रुपया, किसी को 50 पैसा, किसी को 2 रुपया मिला था। नरेंद्र ने 5वीं 6ठी क्लास के बालक ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, कोई भी मेले में इन पैसों का कुछ नहीं खाएगा। इस समय भारत के एक हिस्से में भयंकर बाढ़ आई हुई है,
लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, कितने लोगों ने जीवन से शून्यता प्राप्त कर ली, दिवंगत हो गए हैं। हम एक काम करते हैं, सभी 8-7 बच्चे अपना अपना जो पैसा मिला उसको इकट्ठा करते हैं, और मैं चाय बनानी जानता हूं, अपने घर से स्टोव लेकर के आऊंगा, तपेला लेकर के आऊंगा, यहां मेले में चाय का स्टॉल लगाएंगे। और उन्होंने चाय का स्टॉल लगाया, और चाय बेच करके जितना पैसा इकट्ठा हुआ, नरेंद्र ने वो पैसा बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा, बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा। आप सोच सकते हो, कल्पना करो, आप सारे जितने मेरे सहित बैठे हो, हम सारे 20 साल की आयु से ऊपर के एक जिम्मेदार उम्र से गुजर रहे हैं। एक कुल 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बालक कितना संकल्प विकल्प के साथ जीता है और कितना औरों में अपनापन देखता है। यही तो घटनाएं थी जिन्होंने अभाव में जीने वाले, गरीबी का जीवन देखने वाले, आप हम की तरह सुविधा नहीं मिली पढ़ाई की, उसके बावजूद इन संकल्प और विशेष गुणों के कारण, अपनी घोर तपस्या परिश्रम के कारण, महान कर्म योग के कारण एक बालक आपकी गुजरात की धरती से पैदा होकर अपने कुल के गौरव नहीं, समाज के ही गौरव नहीं, अपितु इस देश के गौरव को जिसने दिग दिगंत में पहुंचाने का काम किया, यह है सामान्य से महापुरुष बनने का रास्ता। आप जितने युवा बेटा बेटी हैं, संकल्प लेकर के दीक्षांत समारोह पे जाएं कि हम अपने कुल के गौरव को बढ़ाने के लिए ये संकल्प करेंगे, मैं इस राष्ट्र के लिए ये योगदान करूंगा। आप राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी हैं। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसके पढ़े लिखे युवा बेटा बेटी होते हैं। तो आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, मैडम ने यहाँ की उपलब्धियों की जानकारी दी, आपका ये विश्वविद्यालय और बढ़े, आने वाली पीढ़ियों का निर्माण यूं ही होता रहे, लेकिन आपके द्वारा परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता गर्व महसूस करे, ऐसा जीवन जीना ही सही जीवन होता है। कीर्तिर्यस्य से जीवति। प्यारे बेटे बेटियों, जिंदा वो नहीं है जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूमता है। जिंदा वो नहीं है यहाँ चोरी की, वहाँ डकैती की, वहाँ हत्याएं की, वहाँ दुष्कर्म किया, वहाँ माँ बाप का अपमान कराया, देश को बदनाम कराया। ये कोई जिंदगी नहीं होती। जिंदगी वो है कीर्तिर्यस्य से जीवती, जिसके अच्छे कर्मों के कारण, जिनके पुण्य कर्मों के कारण माँ बाप की छाती चौड़ी होती हो, समाज जिस पे नाज करता हो, राष्ट्र जिस पे गौरव करता हो, ऐसे लोग सदा अमर होते हैं। दुनिया उनका इतिहास मानती है, आने वाली पीढ़ियां उनको प्रेरणा मानती है। ऐसे विश्वविद्यालयों से पढ़कर आप ऐसे आदर्श गुणों को अपने जीवन में अपनाकर इस देश को चहुमुखी विकास की ओर प्रधानमंत्री जी ले जा रहे हैं। आज विश्व की महाशक्ति भारत बनने जा रहा है। आज आर्थिक रूप से हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज हम 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी का आह्वान हम सबको स्वीकार करते हुए इस देश की गरिमा को बढ़ाने में योगदान करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं युवा बेटा बेटी डिग्री धारकों को, आपके पूज्य माता पिता गुरुजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैडम नीलांबरी बेन दवे जो इस विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं। धन्यवाद।
Dhanyavad, sir. These words were truly words of wisdom. Many thanks indeed. And now the golden moment has come for gold medal distribution. We will come in batches of 5. 5 स्टूडेंट्स के बैच में यहाँ पे आना है. आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है और हमें सिर्फ 1-2 मिनट दीजिएगा, इसकी व्यवस्था कर लेते हैं. And gold medal distribution will begin. Faculty wise नाम बुलाया जाएगा. कुछ लोगों को 1 से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं, उसका भी उल्लेख होगा. और क्विकली मैं गोल्ड मेडल कौन सा है उसका भी जिक्र करूंगा. So let us begin with arts faculty. क्याडा परीक्षा को 3 गोल्ड मेडल मिलते हैं. डॉलर राय माकड़ गोल्ड मेडल, एमडी सोलंकी गोल्ड मेडल और महावर्धन अंजारिया गोल्ड मेडल. क्याडा परीक्षा. बीए संस्कृत. आभानी हीरल बीए गुजराती 2 गोल्ड मेडल. श्री शिबुभाई रामजी जोशी गोल्ड मेडल और निरंजना बेन सत्तावाला गोल्ड मेडल. पुजारा तन्वी एमए इंग्लिश 2 गोल्ड मेडल. योगेंद्र विनायक राय वसावड़ा गोल्ड मेडल और बारोट मनीबेन छोटालाल गोल्ड मेडल. जोएल रेनू बीए इंग्लिश सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल और बांभनिया परेश कुमार को बीजेएमसी के लिए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. अब एमए साइकोलॉजी के लिए भट्ट विराज सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. गढ़धरा संगीताबेन बीए इकोनॉमिक्स के लिए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. गल दिव्याबेन एमए हिस्ट्री के लिए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. गोंडलिया जल्पा साइकोलॉजी विथ इंग्लिश उजमबेन माधव भाई सावलिया गोल्ड मेडल. और गोयल नीलमबेन बीए हिस्ट्री जयेंद्र हर्षित भाई जोशी गोल्ड मेडल. मैं हमारे बीच प्रोफेसर चेतन त्रिवेदी, दर्शिताबेन शाह और नैना पेठरिया जी का भी आमंत्रण स्वागत करता हूं. वी टेक नोट ऑफ योर प्रेजेंस डियर गेस्ट्स. अब एमए गुजराती से गुणा हीरल, हरजीवन दास नेमजी दास ब्रोकर गोल्ड मेडल. बीए हिंदी से हांडा प्रवीण भाई सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. बीए साइकोलॉजी से जोशी अंजलि पुष्पाबेन मेहता स्मृति गोल्ड मेडल. कलोला विधि एमलिब से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. और कटारमल नीलेश एमए फिलॉसफी से पूज्य पांडुरंग शास्त्री अठावले तेजस गोल्ड मेडल. नेक्स्ट एमएसडब्ल्यू से खारा मित्तल सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. बीलिब से मारू मनोरमा सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. एमए सोशियोलॉजी से मेखिया अजय भाई पांडुरंग शास्त्री अठावले तेजस गोल्ड मेडल. एमजेएमसी से नथवानी दृष्टि गुणवंत भाई लालजी भाई गनात्रा गोल्ड मेडल. और एमए इकोनॉमिक्स फीमेल कैंडिडेट की तरफ से परमार बिंदियाबेन हेमाक्षी अनिल कुमार केकानी गोल्ड मेडल. एमए संस्कृत से यूएन ढेबर गोल्ड मेडल रावल जयकिशन को जाता है. संचानिया जानवी इंटीरियर डिजाइन बीए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. सांखलिया जयराज बीए फिलॉसफी आदित्य गोल्ड मेडल. सतानी मोनिका बीएसडब्ल्यू सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. और सोलंकी जशु भाई
PGDMC, Saurashtra University Gold Medal. नेक्स्ट MA Geography से सोलंकी परमेश भाई, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। सोलंकी श्रद्धा MA हिंदी से श्री वालजी भाई जगजीवन भाई पटेल गोल्ड मेडल। सोलंकी वनीता BA Geography से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। वाढेर दक्षेश तेजस गोल्ड मेडल और वाणिया गायत्री बेन BA पॉलिटिकल साइंस से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। अब वसोया पृथ्वीबेन BA साइकोलॉजी। पूजनीय जयश्री अठावले गोल्ड मेडल। MA एजुकेशन पटेल ध्रुमिल कुमार, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। एजुकेशन फैकल्टी से मालनिया हिरलबेन B.Ed आदित्य गोल्ड मेडल। भोरानिया मोहिनीबेन M.Ed सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। परमार उत्तेजनाबेन BA B.Ed सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। साइंस फैकल्टी की ओर बढ़ते हुए BSc बायोटेक्नोलॉजी से आंचल मनी, परम पूज्य हरिप्रसाद दास स्वामी जी गोल्ड मेडल। MCA से शाहनी राजन, बारोट छोटालाल मुरलीधर गोल्ड मेडल। BSc मैथमेटिक्स पंड्या प्रेक्षा, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। BSc केमिस्ट्री मादरिया शीतल, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। और BSc बॉटनी वडाविया राधिका, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। नेक्स्ट मकवाना विशाल BSc जियोलॉजी से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। आद्रोजा मानसी BSc माइक्रोबायोलॉजी से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। गेलानी ध्रुव BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। वरचंद माधवी BSc IT सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। और फतेहपरा हिमाली बेन BCA सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। अब रामानी क्रीना MSc फिजिक्स सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। रोकड ऋत्वी MSc केमिस्ट्री सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। नंदानिया निरालीबेन MSc बॉटनी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। जगड़ा आदर्श MSc जूलॉजी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। अमृतिया वृंदा MSc मैथमेटिक्स सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। अब जाविया कृपा MSc बायोकेमिस्ट्री सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। चौहान विश्वाबेन MSc माइक्रोबायोलॉजी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। चुडासमा जानवी MSc बायोटेक्नोलॉजी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। खानपरा एशा MSc स्टैटिस्टिक्स सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। मेखिया शीतलबेन MSc इलेक्ट्रॉनिक्स सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। अब बालधा दर्शना MSc IT एंड CA सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। असवाड़ा हिरल PGDCA सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। सोलंकी भूमिबेन PGDCA सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। चावड़ा प्रांजल अप्लाइड फिजिक्स इंटीग्रेटेड सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। और लॉ फैकल्टी के पंड्या भार्गवी को 2 गोल्ड मेडल मिलता है। रतिलाल अभयचंद मनियार और श्री वकील शरद चंद्र जवेरी गोल्ड मेडल। BA LLB इंटीग्रेटेड से भांसलिया विवेक सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। मांजरिया पृथ्वीराज सिंह PGDBL से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। और मैं बुलाना चाहूंगा साता यशवी को मेडिसिन से, जिसे हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल मिला है, 9 गोल्ड मेडल्स।
सर्जरी ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी डॉक्टर आर.पी. व्यास, डॉक्टर एस.एम. सेन, डॉक्टर श्रीमती जे.आर. व्यास, डॉक्टर सुरेंद्र बख्शी, लेट डॉक्टर वैकुंठ राय धोलकिया, लेट श्री एच.एन. टोलिया, श्री मोहनलाल पुरुषोत्तम जानी, श्रीमती दमयंतीबेन हरसुखभाई संघवी और श्रीमती गंगाबेन दुर्गा प्रसाद व्यास गोल्ड मेडल्स। साता यशवी को वोरा भव्या LLM ह्यूमन राइट्स, उनको गोल्ड मेडल, BN वीरानी गोल्ड मेडल और नीता शुक्ला को PGDEIL से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। अब नीलांजना घोष मेडिसिन से 3 गोल्ड मेडल मिलता है उनको। RT मेहता, SA तेम्बे और लेट श्रीमती नर्मदाबेन शाह 3 गोल्ड मेडल्स फॉर नीलांजना घोष MS जनरल सर्जरी। अकबरी मयूरी DMLT सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। अंबा ज्योत्सना MBBS पैथोलॉजी इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट गोल्ड मेडल। बलदानिया धर्मेश MD रेडियो डायग्नोसिस, जानकी सिंह जी के झाला गोल्ड मेडल। चौहान गणेश मेडिसिन BA SLP सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। दवावाला उर्वशी बेन MD फार्माकोलॉजी। दवावाला उर्वशी बेन MD फार्माकोलॉजी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। देतरोजा श्रेया MD साइकियाट्री सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। हर्ष शर्मा MBBS पैथोलॉजी इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट गोल्ड मेडल। कथगरा जिमी MD PSM सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। कंसारा नेहा BSc नर्सिंग सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। नेक्स्ट किंजल गोविंद भाई DMLT सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। कोठिया दर्पण MD जनरल मेडिसिन सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। मेनपरा भूमिबेन B फिजियो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। मोदी प्रियंका MD माइक्रोबायोलॉजी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल और पवार संध्या MDS सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। नेक्स्ट परीक शिवानी MD पैथोलॉजी। डॉक्टर HH शाह गोल्ड मेडल। परमा निमिषा बेन MD फिजियोलॉजी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। पटेल कृतिका बेन MD एनेस्थीजियोलॉजी इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेटिक्स जामनगर गोल्ड मेडल। पटेल कुंजल MS ऑर्थोपेडिक्स BJ पुनातर गोल्ड मेडल और पटेल निधि MD डर्मेटोलॉजी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। Next, Patel Zenith, MBBS Pathology, Indian Association of Pathologists Gold Medal. Ranjit Chandrasekharan, MD TB and Chest, Saurashtra University Gold Medal. Sakshi Negi, MS ENT, Jamnagar ENT Surgeon Association Gold Medal. Shah Archie, M Physio, Saurashtra University Gold Medal. Shah Gunjali, MD Pediatrics, Saurashtra University Gold Medal. Next, Somaya Shyam, MBBS Otorhinolaryngology, Dr. NM Modi Gold Medal. Soumya Sharma, MBBS Microbiology. Davraven Vishnu Prasad Bakshi Gold Medal. Sucheta Hegde, MD Obstetrics and Gynecology. Hemali A. Pathak Memorial Gold Medal. Swapnil Vyas, MS Ophthalmology, Saurashtra University Gold Medal. And Vansh Gandhi, MBBS Microbiology, late Davraven Vishnu Prasad Bakshi Gold Medal. Next, Vimal Khanna, MD Forensic Medicine, Saurashtra University Gold Medal. Vora Jinal, MBBS Human Anatomy, CB Bhargav Gold Medal. और कॉमर्स फैकल्टी से सोनगरा जसवंती बीकॉम में BJ पटेल शस्तिपूर्ति महोत्सव गोल्ड मेडल और अपनी जिज्ञासा MCOM अकाउंटेंसी को चंपक सिंह जी राम सिंह जी गोहिल गोल्ड मेडल।
अब गोहिल दिव्या, एमकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस। गोहिल दिव्या चौहान गोल्ड मेडल। चौहान जागृति बेन बीआरएस से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। मीठापरा कौशल भाई एमआरएस सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। रानीपा कृष्णा बीएससी जनरल होम साइंस, उनको 2 गोल्ड मेडल मिलता है। श्री आनंद मणि गोल्ड मेडल और उषाबेन हरसुख भाई संघवी गोल्ड मेडल। चौहान शिल्पा बेन एमएससी होम साइंस जनरल होम साइंस सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। होम्योपैथी फैकल्टी से हर्षिता चावड़ा बीएचएमएस सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। आर्किटेक्चर से भोला नील बी आर्क के लिए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। बिजनेस मैनेजमेंट से धामेलिया कृष्णाबेन बीबीए को 2 गोल्ड मेडल मिलता है। लेट श्री संजय सिंह जी राम सिंह जी गोल्ड मेडल और कनु भाई कालिदास दवे गोल्ड मेडल। मेवा कश्यप एमबीए में डीजी नायक लेट डीजी नायक गोल्ड मेडल और चावड़ा देवांग को बीएचटीएम में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। नेक्स्ट राजानी खुशबू को एमबीए के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। कामदार विश्वा पीजीडीएचएम के लिए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। फार्मेसी फैकल्टी से भट्ट हेतवी एम फार्म के लिए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी से उपाध्याय आर्यन कुमार को एमपीए के लिए शारदा राव मेमोरियल गोल्ड मेडल और मेहता नेहल को बीपीए के लिए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। Many congratulations to all dear gold medalists. अब मैं सम्माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करें। मैं सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। Thank you, sir. On behalf of Saurashtra University, all esteemed guests, आपका अगर ऋण स्वीकार करने के लिए हम शब्द उपयोग करें तो शब्द कम पड़ेगा, बट आपका प्रेजेंस और आपका वक्तव्य ज़रूर हम यहाँ से सब लोग कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाएंगे। और तहे दिल से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं आप सबका। और हम ये भी शुक्रिया अदा करते हैं इतने भारी मात्रा में लोग आए हैं। आवर एस्टीम्ड स्कॉलर्स, गेस्ट्स, वाइस चांसलर्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, अदर इन्वाइटेड गेस्ट, सबका शुक्रिया अदा करते हैं इस मंच से सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेट अस ऑल राइज फॉर द नेशनल एंथम नाउ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य।